भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे। Om Shanti. Good morning. Welcome to this unique session on mastering the mind. Dear participants, Brahma Kumari's family extends greetings of health, harmony and happiness to all of you. I am sure you are having quality time with your family members at your own home, and definitely this COVID period must have brought lot of challenges as well as opportunities to all of you. This almost 2 month lockdown period has definitely made us learn lot of things, lot of positives we have learned, and in fact Brahma Kumaris has been rendering lot of spiritual services for strengthening our own immune system. Friends, the writing on the wall is very clear. If you want to survive, we must enhance our own immunity system. And psychologists say the more strengthened our mind power, the more we are having our coping ability, the more we'll have our own immune system. So with this background, I must say that Brahma Kumaris as a spiritual educational institution has been imparting spiritual wisdom and Raj Yoga meditation for all segments of society, for all sorts of people, irrespective of religion, caste and creed, over 8 decades throughout the world. The education like you are doing, rendering a noble service for the society, for building the country, as teaching community, you all are molding the minds of future of the nation. Rightly said by our ex-President of India, a true educationist, Dr. S. Radhakrishnan. Nation is built in classroom, not in parliament. So you are the true builder of nation. I must appreciate the contribution of yours towards building the nation. Brahma Kumaris has been imparting similar education, that is spiritual education for nurturing mind, body and soul. We must start this session with a beautiful song. अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें, अपनी खुशी का किस तरह इजहार हम करें। प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें। कह रही हवाएं भी आपकी कहानियाँ, आपसे बरस रही सब पे मेहरबानियाँ।
जो पधारे तो महक उठी कली कली। खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत, खुले मन से होता यहाँ सबका स्वागत। नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया, हो नहीं गैर कोई ये अपनों की दुनिया। यहाँ आके जन्नत का कर लो नज़ारा, ये हूरों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, ये हूरों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, हो ये हूरों की दुनिया, फरिश्तों की दुनिया। Thank you, Damini Ben, for such a melodious song. We are very much privileged to have our most revered Kamlesh Didi ji to bless all of us. आदरणीय दीदी जी एक असाधारण व्यक्तित्व है। आप त्याग और तपस्या के प्रतिमूर्त थे। आपकी रूहानियत और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा विश्व के कई देशों तथा भारत के अनेक स्थानों पर अनेक आत्माओं को ट्रांसफॉर्म किया, इंस्पायर किया। Over 5 decades you have been instrumental in transforming all over the world in general, but Odisha in particular. Odisha is fortunate to be blessed by your pure wisdom, by your divine experiences. आदरणीय दीदी जी will inspire us by her words of wisdom. दीदी जी। ओम शांति। वर्तमान में हम जैसे दुनिया की हालत देख रहे हैं, इतना दुख, अशांति और परेशानियां मनुष्य के पैदा हो रही हैं, समस्याएं। और बहुत मनुष्य हैं जो कहते हैं कि हमें मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, और उन्हें ये पता नहीं है कि आखिर मन क्या है। मन का ज्ञान होगा तब तो मन की शांति मिलेगी। तो देखा जाए तो हर चीज़ का ज्ञान या शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज होते हैं। तो मन को समझने के लिए और मन के ज्ञान के लिए ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसमें जब मनुष्य जाएगा तो उसे पता पड़ेगा कि मन क्या है, तब वो मन की शांति प्राप्त कर सकता है। मन एक चैतन्य शक्ति है और शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति है उसको मन, बुद्धि और संस्कार को मिला करके आत्मा कहा जाता है। और उस आत्मा के द्वारा ही हम सब कार्य करते हैं। अगर आत्मा शरीर में नहीं हो तो शरीर को 1 मिनट भी कोई घर में रखेगा नहीं, पूछेगा नहीं। तो वास्तव में इस शरीर को चलाने वाला और शरीर के द्वारा पाठ बजाने वाले आत्मा है। और उस आत्मा के अंदर एक शक्ति है, उसका नाम है मन। और दूसरी शक्ति का नाम है बुद्धि, तीसरी का नाम है निर्णय।
तो जब ये तीनों शक्तियों का हमें ज्ञान हो जाता है, समझ में आ जाता है कि मन क्या है, तो मन अगर उल्टी तरफ जाएगा तो हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। मन के दो बातें हैं, एक बुराइयों में जाना और एक अच्छाइयों में जाना। जब वो बुरी बात को पसंद करेगा और उसमें जाएगा तो बुद्धि रोक लगाएगी कि नहीं, ये अच्छा नहीं। फिर भी मन इतना आउट कंट्रोल है कि बुद्धि की बात नहीं मानेगा, वो बुराइयों में चला जाएगा। और जब वो अच्छाइयों में जाएगा तो बुद्धि उसको हाँ करेगी, इसमें जाओ। उसकी इच्छा होगी तो अच्छाइयों की तरफ मोड़ लूँगा, तो अब उसे मन में शांति मिलेगी। अच्छाइयाँ माने आत्मज्ञान हो गया, उसे समझना कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ जो वृत्ति के मध्य में बैठकर, जैसे ड्राइवर मोटर होता है तो वैसे शरीर एक मोटर है, बस है, और इसको चलाने वाला चालक है आत्मा, जो हमारे मस्तक के बीच में, प्रकृति के बीच में रहती है। और यही आत्मा सारा दिन पाठ बजाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर वो आध्यात्मिक आत्मज्ञान दिया जाता है। जब आप यहाँ पर आएंगे और वो ज्ञान को सुनेंगे तब आप समझ जाएंगे कि रियली में हमारी आत्मा क्या है और आत्मा में मन की शांति कैसे आ सकती है, या मन हमारा कैसे शांत रह सकता है। मन जब श्रेष्ठ हो जाएगा और कर्म श्रेष्ठ करेगा, बुद्धि श्रेष्ठ होगी, नेत्र श्रेष्ठ हो जाएंगे, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। कर्मों की श्रेष्ठता है मन की शांति। अगर कर्म श्रेष्ठ है, मन शांति में है, और कर्म खराब हुए तो मन अशांति हो जाएगी। और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है। आध्यात्मिक शिक्षा हमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मिलती है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। परमात्मा हमारा पिता है, जैसे मेन पावर हाउस होता है, उससे कनेक्शन नहीं होगा तो लाइट नहीं आई, ऐसे ही परमात्मा के साथ हमारी बुद्धि का कनेक्शन नहीं होगा तो हमें लाइट और माइट नहीं मिलेगी। आत्मा अपने आप को पहचान कर बुद्धि से परमात्मा के साथ कनेक्शन करती है, फिर हमें पावर आती है, कंट्रोलिंग पावर आता है, मनोबल बढ़ता है। मनोबल और बुद्धि बल जब बढ़ जाता है, कंट्रोलिंग पावर आती है, तो हम नेगेटिव विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं और नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। और जितना हम पॉजिटिव विचारों में रहेंगे उतने हमारे कर्म अच्छे होंगे, और जितने कर्म अच्छे होंगे उतना जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो आध्यात्मिक शिक्षा के बिना हमें ना शक्ति मिल सकती है ना शांति मिल सकती है। आध्यात्मिक पावर सबसे बड़ी पावर है। जितनी भी पावर संसार में है, साइंस की है और भी है, और सबसे बड़ी पावर है आध्यात्मिक पावर। आध्यात्मिक पावर से हमें साइलेंस पावर आती है, और साइलेंस पावर से हमें शांति प्राप्त होती है, जो हम शांति चाहते हैं। तो मन को शांति करने के लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा रोज रोज लेना पड़े। जैसे मन माँ शरीर को साफ करने के लिए रोज रोज स्नान करती हैं, खाना खाती है इसको चलाने के लिए। एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो बीमार जैसे लगेंगे। ऐसे ही हमारी आत्मा को चलाने के लिए हमें श्रेष्ठ खुराक, अच्छी बातों की खुराक, आध्यात्मिक शिक्षा रोज लेनी होगी। जब रोज लेंगे हम आध्यात्मिक शिक्षा तो हमें वो शक्ति आएगी, शांति आएगी,
जो परमात्मा से मिल सकती है। परमात्मा ही शांति का और शक्ति का सागर है। जब तक उससे हम कनेक्ट नहीं है तो हमें शांति और शक्ति नहीं मिलेगी। तो परमात्मा के द्वारा हम शांति और शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और शांति शक्ति प्राप्त करने से हम कोई प्रकार से दुखी नहीं होंगे, और संसार की तरह हमारा मन घबराएगा नहीं। ये नहीं कहेंगे हमें मन की शांति चाहिए, हमें शांति अपने आप प्राप्त हो सकती है। तो परमात्मिक शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से हम शांति और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति वो जो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे, श्रेष्ठ विचारों में बदल दे, और शांति वो जो परमात्मा की प्राप्ति में गहन गंभीर शांति मिलती है। जितना जितना हम कोई बाहर खोजेंगे शांति और भगवान को तो नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर हम इनर से भगवान के खो जाएंगे, बन जाएंगे, तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दीदी जी। आपके शब्द शब्द नहीं है, शब्द में शक्ति है, और हम सभी को इंस्पायर कर रहे हैं to how to master our mind through application of great philosophy of Raj Yoga। हमें निश्चय है आने वाले समय में आप हमें ऐसे ई प्लेटफॉर्म्स में आशीर्वचन द्वारा जीवन को प्रेरित करेंगे। थैंक यू। Dear participants, in my background you can find Odisha's premier institute, National Institute of Technology, NIT Rourkela. It has the tremendous contribution so far technological growth and industrial progress is concerned, not only for the country, for the whole global family. It has produced thousands of technocrats, business leaders, and I must credit the institute. As myself a technocrat, I understand the role of technology. But dear participants, the technology, engineering definitely have made us learn how to master the machine. What about mastering the mind? Because it is said happy minds produce happy results. संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि. आज is your thought, so is your destiny. In this context, today's topic, mastering the mind, assumes real significance. And most importantly, we are privileged to have a learned speaker, Professor Dr. E.V.S. Swaminathan. He is a technocrat. He has done engineering from Calicut. He continued with management training and conducting different seminars. Association of 2 decades or so with Swami Bhai. I must say that over and above a good communicator, you are a good human being, humble human being. You have covered different segments of society, engineers, managers, youth, students, medical professions, even defense personnel. So, Swami Bhai, you will inspire us
from God's own land, that is Kerala. And we, people from land of Jagannath, welcome you for this magnificent seminar. Swami Bhai, please join us. Om Shanti or Namaskar. I am Dr. E.V. Swaminathan, welcoming all of you, my dear friends, for today's session on mastering the mind. I am interacting with you from God's own country, Kannur, Kerala. It's a great pleasure to meet all of you. मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे. I start the today's session with a very wonderful anecdote. It so happened that a young man was enjoying his journey on a hot air balloon. एक युवक एक hot air balloon में यात्रा कर रहे थे. And as he was enjoying his journey, suddenly he gets lost. And his balloon starts wandering here and there. He needed help. और अचानक ये युवक उस hot air balloon से देखते एक नीचे एक व्यक्ति चल रहा है. उस युवक इस नीचे वाले व्यक्ति को बुलाते, हेलो सर, कैन यू हेल्प मी. ये जो नीचे जो व्यक्ति था वो कहता, यस आई कैन हेल्प यू, टेल मी व्हाट हेल्प डू यू वांट. ये युवक जो बलून में था वो कहता है, सर कैन यू टेल मी वेयर एम आई राइट नाउ एंड व्हाट इज़ माई लोकेशन. तो ये व्यक्ति जो नीचे खड़ा था वो कहता है, यस आई विल टेल यू वेयर आर यू राइट नाउ. यू आर 60 feet अबव द ग्राउंड, 30 डिग्री लैटिट्यूड, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. इन द हॉट एयर बलून वो युवक इस व्यक्ति का जवाब सुनता है और उनसे पूछता है, सर बाय एनी चांस आर यू अ टीचर. तो ये कहता है, परफेक्टली राइट, हाउ डू यू नो दैट. तो युवक जवाब देता है, सर यू हैव गिवन मी टन लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट नन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पिंग मी राइट एट दिस मोमेंट. ये व्यक्ति कहता, हॉल्ट, आई एम श्योर यू आर अ स्टूडेंट. तो युवक कहता, सर परफेक्टली राइट, हाउ डू यू नो दैट. So the teacher says, you do not know where are you coming from, you do not know where are you supposed to go, still you have the courage to criticize the teacher. Who else you could be other than a student? Now that's a very wonderful equation between a student and a teacher. और आज के समय पर what we have seen in the present academic circle, both the student as well as we teachers are in a complete state of chaos, confusion, and we do not know what are we supposed to do. In this particular context is what we are going to discuss today. How do we master the mind? And that's what we are about to understand in this beautiful journey. My dear friends, it is said life is a question of options. Life is a question of choice. तो मैं आपको दो ऑप्शन बताता हूँ. ये दोनों ऑप्शन आप सोच समझकर सही ऑप्शन को चूज करना. पहला ऑप्शन ये है कि आज जीवन में इतना प्रॉब्लम, इतना संघर्ष है, इतनी चुनौतियां हैं, ये सब ठीक हो जाएगा. देन मैं अपने मन को शांत स्वरूप और स्थिर स्वरूप में लेकर आऊँगा. वंस दिस प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व्ड, देन आई विल ब्रिंग माई माइंड टू अ स्टेट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी. दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन ये है कि इफ आई ब्रिंग माई माइंड टू अ स्टेट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, देन आई गेट द इनर स्ट्रेंथ to manage all these challenges. दोस्तों, अगर मैं अपने मन को शांत स्वरूप और स्थिर स्वरूप में लेकर आता हूँ तो मेरे अंदर वो शक्ति डेवलप होती है ताकि मैं इन चुनौतियों का सामना कर सकूँ. और ये दोनों ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप सेकंड ऑप्शन को ही चूज करेंगे. राइट. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज एन हाइपोथेसिस. और इस हाइपोथेसिस को हमें एक्सप्लोर करना है, एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपीरियंस करना है. दोस्तों, ये जो थियोरी है इसके प्रति थोड़ा विचार मंथन करना है, खोज करना है, फिर उसका हम प्रयोग करेंगे और फिर इसका हम अनुभव करेंगे. एंड दैट्स व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम टू मेक अ स्मॉल चेंज. एंड द स्मॉल चेंज वी शुड ब्रिंग इट टुडे इन द वे वी कम्युनिकेट. आज से जब हम अपने बच्चों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो एक छोटा सा हम परिवर्तन करें. और क्या परिवर्तन करना है? आज तक हम अपने स्टूडेंट्स को यह डायलॉग बोलते थे कि आई वॉन्ट यू टू बिकम सक्सेसफुल. मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में विजयी बने, सफल बने. आज से हमें ये परिवर्तन करना है कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग देम टू बिकम सक्सेसफुल, वी शुड टेल देम, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन, I want you to become peaceful, stable
एंड हैप्पी। और जैसे ही हम ये इनपुट अपने स्टूडेंट्स को देते हैं तो हमारे बच्चे पता क्या करेंगे, आज तक वो गूगल में सर्च करते थे हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, जैसे ही हमारे छोटा सा परिवर्तन देखेंगे वो अपने गूगल में सर्च करेंगे हाउ टू बिकम पीसफुल, स्टेबल एंड देयरबाय हैप्पीनेस। द कोरोना वायरस हैज शेकन अस टू अवेकन अस टू दिस ब्यूटीफुल रियलिटी कि आज तक जो हम सफलता के पीछे भाग रहे थे, हमें मन में शांति, मन में स्थिरता, और ये जब आ जाता है तो जीवन अपने आप सुखमय बन जाता है और हम धीरे धीरे सफलता की तरफ चलने लगते हैं। और आज अपने मन को मास्टर करने के लिए हम 3 बातें देखेंगे। द फर्स्ट वन इज हाउ डू वी मास्टर द माइंड, नंबर 2 हाउ डू वी मास्टर आवर इमोशंस, एंड नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ डू वी मैनेज एंड मास्टर दिस सेल्फ। ये तीनों बातों को आज के हम सेशन में कवर करेंगे। पता है दोस्तों, पुराने ज़माने में जो शिक्षा प्रणाली होती थी ना, वो प्रकृति के बीच में होती थी। खुला आसमान है ना, धीमी धीमी ठंडी हवा बह रही है नदी के किनारे, और जब प्रकृति के बीच में बैठकर कुछ पढ़ाई करते हैं ना तो हमारा जो मन है उसको बहुत प्यार से, बहुत दिल से उसको स्वीकार करता था। तो आज मैं आपको एक छोटा सा संदर्भ बताता हूँ। हम टीचर्स के लिए आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपने घर में बंद हैं और हमारे विद्यार्थी जो हैं अपने घर में बंद पड़े हैं। एंड व्हाट द मेथोडोलॉजी ऑफ पेडागॉजी दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ टुडे इज एन ऑनलाइन टीचिंग। हम साइंस को, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, और ये अपने इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। चुनौतीपूर्ण ये है क्योंकि शायद हमारे विद्यार्थी हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी को समझते हैं, लेकिन एक ऑनलाइन टीचिंग कैसे करना है उसकी टेक्नोलॉजी आप और हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। लेकिन ये तो हम धीरे धीरे ये स्किल जो है हम ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, लेकिन चैलेंज पता क्या आ रहा है आज हमको? उन दिनों को याद करिए जब हमारे क्लासरूम में 60 बच्चे होते थे और हम वहाँ पे प्रत्यक्ष उनके सामने खड़े होते थे, और हम टीचर्स हमेशा स्टाफ रूम में यह डिस्कस करते थे कि बच्चे बिल्कुल एकाग्र नहीं हो रहे हैं, उनका मन इधर उधर भटक रहा है। नाउ जस्ट इमेजिन द सिचुएशन फॉर टुडे, जहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं रूम के अंदर चारों तरफ गैजेट्स है, राइट, कोई उनको देख नहीं रहा है, और ऐसे समय पर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा अपने मन को एकाग्र होकर उस बात को समझना जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय पर हम अपने मन को कैसे मास्टर करें? मुझे याद आता है जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी, इतनी ब्रिलियंट टीचर थी और वाणी इतनी मधुर थी कि कुछ पूछो मत। तो टीचर का एक बहुत अच्छा संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी, एंड अ फेवरेट 1-line सॉन्ग वाज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर पढ़ाना आरंभ करती थी, फिर वही गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मुझे मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता था। मैं बैठकर गिनता रहता था कि आज मैडम ने ये गीत कितनी बार गाया। एग्जाम नज़दीक आ रहे थे, मैडम फुल स्पिरिट में थे, 1 डज़न से ज़्यादा बार वही गीत गाया। तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? शी लुक्ड एट मी, स्टेयर्ड एट मी, स्माइल्ड एट मी एंड सेड, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। कॉन्सेंट्रेशन क्या, ये तो बच्चों को सिखाया नहीं, एंड वी एक्सपेक्ट आवर किड्स टू कॉन्सेंट्रेट। मुझे याद आता है उस दिन जब मैं घर में गया तो मैंने अपने पापा से पूछा, पापा व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? मुझे पापा का चेहरा देखकर समझ में आ गया कि उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस था। उन्हें मुझे देखकर कहा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ध्यान। मैंने पूछा, पापा ध्यान क्या होता है? फोकस ऑन योर स्टडी स्वामी। तो मैंने पूछा, पापा फोकस कैसे करते हैं? एकाग्रता से पढ़ाई करो। तो मैंने पूछा, पापा एकाग्रता क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। तो मैंने पापा से पूछा, पापा यही तो मैं पहले पूछ रहा था, और आप जो मुझे बता रहे थे ना पापा, उसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, सिमिलर वर्ड्स। हिंदी में उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, राइट। मुझे याद आता है दूसरा दिन जब मैं क्लास में गया तो मेरी वो टीचर ने आकर सबसे पहले मुझे कहा, स्वामी yesterday you asked a very wonderful question. You asked what is concentration. Today I am going to tell you a story to explain what is concentration. तो मैंने I was very excited, मैंने कहा प्लीज़ बताइए मैडम। उन्होंने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई। पांडवास और कौरवास के जो गुरु जो थे ना, वो गुरु द्रोणाचार्य थे। तो एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को इसी तरह सुंदर प्रकृति के बीच में लेकर आए, और एक पेड़ था
और पेड़ में एक पंछी थी। तो सभी शिष्यों को गुरुजी ने कहा आपका लक्ष्य है उस पंछी के आंख। और फिर उन्होंने सबसे पूछा अच्छा बताइए आपको क्या दिख रहा है। तो सभी शिष्यों ने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे उसके ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, मुझे उसके पत्ते दिखाई दे रहे हैं, वो पंछी दिखाई दे रही है। उसमें सिर्फ एक शिष्य था जिसने बड़े ध्यान से गुरुजी को कहा कि गुरु मुझे सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई दे रही है। और फिर गुरु द्रोणाचार्य ने उनको कहा यस अर्जुन हैज़ अंडरस्टूड व्हाट इज कंसंट्रेशन, एकाग्रता क्या है। और मेरी मैडम ने ये कहानी सुनाकर कहा स्वामी दिस इज व्हाट वी मीन बाय कंसंट्रेशन। उस दिन वो क्लास ख़त्म होने के बाद जब मैं इंटरवल हुआ तो मैं क्लासरूम के बाहर आया और वहाँ पे इतने सारे हमारे स्कूल कैंपस में वो पेड़ थे। तो मैंने एक पेड़ के सामने खड़े होकर देखा कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो पेड़ दिखाई दे रहे थे, ब्रांचेस दिखाई दे रहे थे, पत्ते दिखाई दे रहे थे। मैं उस पेड़ को जाके ढूंढा जिसमें पंछी बैठी थी, तो मुझे पंछी भी दिखाई दे रहा था, बाकी सब भी दिखाई दे रहा था। तो मैं दौड़ कर आकर स्टाफ रूम में आया और उस मैडम को कहा मैडम कैन यू प्लीज़ कम आउट फॉर सम टाइम, व्हाट इज़ इट स्वामीनाथन। मैंने कहा मैडम 1 मिनट के लिए आप बाहर आइए, तुम ना मुझे बहुत परेशान करते हो। फिर भी मैडम मेरे साथ आई और मैं वो पेड़ के सामने खड़ा हुआ और मैडम को पूछा कि मैडम आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो मैडम ने कहा स्वामीनाथन सच अ स्टूपिड क्वेश्चन, पेड़ दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा मैडम मुझे भी वो पेड़ दिख रहा है, मुझे भी वो ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी वो लीव्स दिखाई दे रही है, लेकिन आपने तो कहा था कि अर्जुन को सिर्फ उस पंछी की आंख दिखाई दे रही है। मीन्स मैं तो अर्जुन नहीं बना ना। एंड माई मैडम स्टार्टेड थिंकिंग फॉर अ मिनट एंड सेड स्वामी दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, यू ऑल्सो थिंक अबाउट इट। और फिर जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर आपको इसका जवाब मिलता है तो प्लीज़ मेरे पास आकर मुझे इसका जवाब ज़रूर देना। उस दिन मैंने एक अच्छे शिक्षक की निशानी क्या होती है मैंने समझा। It is not that we teachers need to know the answer of every question, but what is very very important I learned from my wonderful teacher is we need to be humble, we need to be polite. हमें बहुत नम्रता पूर्वक इस खोज में चलना चाहिए। तो अर्जुन ने जब कहा कि मुझे सिर्फ उस पंछी के आंख दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह है अर्जुन को उस एकाग्रता का रहस्य मालूम था। तो आज ज़रूरी ये है कि आज जो हम और हमारे विद्यार्थी जो साधनों के बीच में फंसे हुए हैं, इतने सारे टेक्नोलॉजी के बीच में हैं, दिस एंशिएंट नॉलेज एंड दिस एंशिएंट विजडम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उस साल के बर्थडे में मेरे पापा ने मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और गिफ्ट एक बहुत सुंदर किताब थी। उस किताब के फ्रंटलाइन पेज में स्वामी विवेकानंद का फ़ोटो था और उसमें लिखा था राजयोग। और मेरे पापा ने कहा स्वामी विवेकानंद वॉज नोन फॉर हिज पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू प्रैक्टिस अ टेक्निक विच इज़ कॉल्ड एज राजयोग। आप ये किताब पढ़िए तो शायद आपको एकाग्रता क्या है समझ में आ जाएगा। मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मच ऑफ व्हाट इज़ राजयोग, लेकिन आज से 25 साल पहले आई हैड अ चांस टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज एट माउंट आबू। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये समझ करके कि ब्रह्मा कुमारीज की फैकल्टी ऑल्सो टीचर्स अस दिस टेक्निक ऑफ राजयोगा। तो दोस्तों राजयोग 2 शब्द से बना हुआ है, एक है राज और दूसरा है योग। चलिए इस यात्रा में हम बहुत सारे मन और भावनाओं को कैसे मैनेज करें उसके रहस्यों को हम जानेंगे। सो फ्रेंड्स, मास्टरिंग द माइंड मीन्स अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड अप्लाइंग द टेक्निक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एकाग्रता को समझते हुए अपने जीवन में उसको अप्लाई करना। और कंसंट्रेशन सिर्फ विद्यार्थियों को या शिक्षकों को सिर्फ ज़रूरत नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में हमें एकाग्रता यूज़ करना पड़ता है। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आप अगर भोजन बना रहे हैं, और सफलता के किसी आयाम तक पहुंचने के लिए एकाग्रता बहुत बहुत ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को सब कुछ चीज़ सिखाते हैं। We download so much of information to our students, but I think this technique of concentration ought to be taught at a very very early age. तो आज concentration हम समझेंगे, उसके लिए एक बहुत सुंदर जो टेक्नोलॉजी है वो है राजयोग। और यहाँ पर हम राजयोग के द्वारा जो समझेंगे इट इज़ मास्टरिंग आवर इमोशंस। और इस राजयोग में सबसे पहले हमें समझना है कि ये मन क्या है। इनफैक्ट व्हाट इज माइंड।
माइंड इज अ बंडल ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। हम जो संकल्प करते हैं और संकल्पों के पीछे जो भावनाएं होती है, हमारी इमोशंस जो होते हैं, और किसी भी संकल्प में जब वो भावना जुड़ती है, दैट बिकम्स एन एवरलास्टिंग काइंड ऑफ ए मेमोरी। वो हमारी स्मृति बन जाती है। इसलिए आज हम लोग सिर्फ इंटेलिजेंस की बात नहीं करते हैं, हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। अर्थात सिर्फ हम बुद्धिशाली नहीं बने, लेकिन भावनात्मक स्तर पर बुद्धिशाली कैसे बने। और आज के समय चारों तरफ जितना डर है, भय है, अनिश्चितता है, केओस, कंफ्यूजन, ऐसे समय पर शांति, प्रेम, स्थिरता, खुशी, आनंद के इमोशंस को समझना और जीवन में अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन द प्रेजेंट टाइम मोर देन IQ, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज EQ, इमोशनल क्वोशेंट। एंड वी ऑल नो कि व्हाई डिड द शिफ्ट फ्रॉम IQ टू EQ टेक प्लेस। जैसे अगर आज एक विद्यार्थी एग्जाम लिखता है, at the end of the 3-hour exams he gets 60% या 80%, right? But the same student given the same type of questions the next day, his marks can increase from 60% to 80% to as high as 100%. इसका मतलब ये है कि IQ is not a fixed quantity. It's a variable fluctuating quantity and it depends upon a student's emotions. अर्थात जब वो विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उसके इमोशंस कैसे हैं। अगर वो डर गया है, भय में है, स्ट्रेस में है, तो ऑटोमेटिकली द EQ ड्रिप्स डाउन एंड ऑटोमेटिकली द रिट्राइविंग पावर्स ऑटोमेटिकली कम्स डाउन। इसीलिए EQ बहुत बहुत ज़रूरत है। अब हमें समझना है कि हमारे इमोशंस कैसे हैं। सो EQ के आधार पर 3 प्रकार के इमोशंस होते हैं। एक है इमोशनली स्टेबल, फर्स्ट कंडीशन, दूसरा इमोशनली ओके, और तीसरे हैं हम होते हैं इमोशनली सेंसिटिव। आई रिपीट वंस अगेन, इमोशनली स्टेबल, इमोशनली ओके, और तीसरा होता है इमोशनली सेंसिटिव। तो हम और आप किस लेवल ऑफ EQ में हैं, ये समझना बहुत बहुत इजी है। और ये समझने के लिए कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो फ्रेंड्स ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें आपके दोस्त जो व्हाट्सएप में क्या क्या है ना वो पोस्ट करते हैं और अपने क्या क्या वो मैसेजेस देते हैं, उस मैसेजेस को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि हम लोग का EQ कैसा है और हमारे दोस्तों का EQ कैसा है। अक्सर हमने 1-1.5 महीने हम यहाँ बंद थे, लॉकडाउन में थे, तो हमने देखा होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे कुछ दोस्त होंगे जो हर पल हर क्षण रिएक्ट करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी को ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए था, ऐसे कुछ दोस्त हमारे होंगे। और जब हम इन दोस्तों के इमोशंस को देखेंगे और हर पल हर क्षण रिएक्टिव जो मोड में होते हैं, दे आर एक्चुअली जाए तो दे आर वेरी वेरी इमोशनली सेंसिटिव। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो अमेरिका में रहता है, बहुत पढ़ा लिखा है, कंप्लीटेड हिज PhD। हर पल हर क्षण रिएक्ट करते रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका में है तो न्यूयॉर्क में जैसे जैसे केसेस बढ़ने लगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी उनके पोस्ट में आता था। तो एक दिन मैंने बड़े प्यार से उनको पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज भेजा। मैंने कहा, माय डियर फ्रेंड, आप इतने बुद्धिशाली हो तो एक काम करते हैं, आई विल अरेंज अ मीटिंग ऑफ यू विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। क्या आप प्रधानमंत्री के साथ आधा घंटा 1 घंटा बात करके क्या प्रधानमंत्री को आप बता सकते हैं कि सारे प्रॉब्लम के समय पे प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, राइट? विल यू बी एबल टू डू इट? तो थोड़ा शांत हो गए। नहीं मैं कैसे बता सकता हूं। मैंने कहा ओके, प्रधानमंत्री को छोड़ते हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वर्तमान समय पे आप अपने ऑफिस के लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं? तो बोला, स्वामी नहीं, वर्क एट होम चल रहा है लेकिन कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसे हैं वैसे हैं। मैंने कहा ओके, क्या आप अपने फैमिली को, अपनी वाइफ को संभाल पा रहे हैं? तो एकदम शांत हो गए। तो मैंने कहा वाइफ को छोड़ो, क्या आप अपने 2 बच्चों को मैनेज कर पा रहे हैं? तो बोला, स्वामी आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, ठीक जगह बैठते नहीं है, पढ़ते नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है माय डियर फ्रेंड, बच्चों को भी छोड़ो, क्या आप
अपने आप को मैनेज कर पा रहे हो क्या? आर यू एबल टू मैनेज योर ओन इमोशंस? तो वो एकदम गुस्से में आ गया, बोला स्वामी व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजिंग द सेल्फ? तो मैंने कहा माय डियर फ्रेंड, सारे दिन में आपको कितनी बार गुस्सा आता है, कितनी बार आपको इरिटेशन होता है? और अगर सारे दिन में बार बार गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन आ रहा है, मतलब यू आर एक्चुअली वेरी वेरी इमोशनली सेंसिटिव। अंदर जो भरा हुआ इमोशंस है ना, वो हमको चारों तरफ हम रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए राजयोग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम दूसरों को मैनेज करने में अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारा सारा फोकस, हमारा सारा अटेंशन स्वयं के इमोशंस को कैसे मैनेज करना है वो सीखने पर हमको लगाना चाहिए। मैं अपने सभी शिक्षक दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम किसी क्लासरूम में जाते हैं तो 60 बच्चे हमें देखकर वो सीखते हैं। हमने आज तक क्लास में अगर बहुत ज़्यादा चिल्लाया है, बहुत अगर गुस्से से बोला है, तो हमारे बच्चे हमको देखकर लगता है कि गुस्सा करना इज एक्चुअली वेरी वेरी नॉर्मल, ये हमको लगता है। अब मैं चाहूँगा, क्योंकि हर बच्चा अपने घर पर है, आप जब भी अपने विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैन वी इंटरेक्ट विथ लॉट्स ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस? क्या हम शिक्षक मधुर भाषी बन सकते क्या? क्या हमारी वाणी में वो मधुरता आ सकती क्या? कैन वी डेवलप दिस सेंस ऑफ एम्पैथी? कैन वी अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट? आज तक हमको लगता था कि हमारे विद्यार्थी हमको सुन नहीं रहे हैं, लेकिन आज तो हम उनके घर तक पहुंच पा रहे हैं ना। तो क्या उस विद्यार्थी के माता पिता को जो चैलेंजेस हैं, क्या हम उसको समझ पा रहे हैं? और जब हम दूसरों के इमोशंस को समझने लगते हैं तो एक्चुअली वी बिकम, आवर कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी लवफुल, आवर कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी वेरी एम्पैथेटिक। तो अगले 24 घंटे तक मैं आप सभी टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि कैन वी बिकम रोल मॉडल्स, क्योंकि चिल्ड्रन सी एंड चिल्ड्रन डू, बच्चे देखते हैं और बच्चे करते हैं। और इसके लिए राजयोग में स्वयं पर राज करना और स्वयं को समझना कि मैं कौन हूं। And that is what we come to the last and final thing. It is, first is mastering the mind, number 2 is mastering the emotions, and the most important राजयोग में mastering the self, स्वयं पर कंट्रोल करना, स्वयं को मैनेज करना। Friends, Socrates was a great philosopher in the field of education. Years back he had reported, to know thyself is education. स्वयं को जानना ही शिक्षा है। अक्सर कर हम टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ये डायलॉग बोलते रहते थे, यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन सेल्फ क्या है आज तक हमने अपने सिलेबस में कवर नहीं किया, और मेरे ख्याल से वर्तमान समय पर हमें सेल्फ का डेफिनेशन स्वयं को समझना और स्वयं के लिए महसूस करना बहुत ज़रूरत है। सेल्फ का जो फुल फॉर्म है SELF, सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइट फॉर्म, अर्थात मैं इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में एक अदृश्य ऊर्जा हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, अ पॉइंट ऑफ एनर्जी। कहते हैं एजुकेशन इज नॉट फिलिंग ऑफ द वेसल बट इट्स इग्नाइटिंग द लाइट विद इन। बहुत सारे फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, डेरिवेशंस, डेफिनेशन पढ़ना दोस्तों शिक्षा नहीं है, लेकिन स्वयं के वो प्रकाश स्वरूप को महसूस करना शिक्षा है। और कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सेल्फ, अर्थात हमारे अंदर जो दिव्य गुण हैं उस दिव्य गुणों को फील करना और जीवन में अप्लाई करना शिक्षा है। अर्थात आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग। मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे बाहर से शांति देने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरा स्वरूप ही प्रेम स्वरूप है और मेरे अंदर असीम शक्ति है। इस शक्ति को फील करना राजयोग है। एंड पीपल हु प्रैक्टिस दिस टेक्निक ऑफ राजयोगा, दे आर ऑलवेज स्टेबल, दे आर ऑलवेज एबल टू फेस अ सिचुएशन मच मोर इफेक्टिवली। इससे मुझे लगता है ये टाइम है जहाँ पर हम
मेडिटेशन को सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो राजयोग में हमको ये समझ में आता है जैसे एक शरीर जो है ना एक मोबाइल की तरह है और हर मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है, उसी तरह आत्मा जो है सिम है, SIM। S मीन्स अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अब आत्मा के 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां होते हैं, राइट? एंड दैट इज M इज माइंड, I इज इंटेलेक्ट एंड S फॉर संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो है संकल्प करने की एक शक्ति है, बुद्धि उसका करस्पॉन्डिंग चित्र बनाती है। तो एकाग्रता क्या है? एकाग्रता ये है जब मन और बुद्धि एक साथ काम करता है। When the mind and intellect works together, it is called as concentration. तो जब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी से पूछा कि आपको क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे उस पेड़ के उस पंछी की सिर्फ आंख दिखाई देती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब हम स्थूल नेत्र से देखते हैं तो हमें सब कुछ दिखाई देता है, ये तो स्वाभाविक है, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन जब अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ उस पंछी के आंख दिखाई देती है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने स्थूल नेत्र से देखने की बात नहीं की, उन्होंने अपने अंतरचक्षु से देखने की बात है, मन और बुद्धि से उस पंछी के आंख को देखना। जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं थ्रू दिस कैमरा, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू माय गुड फ्रेंड सुमेश हु इज कैचिंग मी ऑन दिस कैमरा। ठीक है, अब वो जो भाई जो बैठे हैं वो मुझे कैमरा से कैच कर रहे हैं, तो उनके पास एक फैसिलिटी है, उस कैमरा को वो जूम कर सकते हैं और सिर्फ स्वामी पर फोकस कर सकते हैं, बाकी चीज सब ब्लर कर सकते हैं। दोस्तों अगर एक यंत्र से अगर हम ये कर सकते हैं, उसी तरह हम अगर सामने कुछ देख रहे हैं लेकिन देखते हुए हम अपने मन बुद्धि को फोकस अपने लक्ष्य पर कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ कंसंट्रेशन। वर्तमान समय में ये हमें अपने बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं सारे ऑनलाइन गैजेट्स के साथ बैठे हैं। आप उनको फोटो के द्वारा, आप उनको पीपीटीज के द्वारा, आप उनको इमेजेस के द्वारा दिखा रहे हैं, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि बच्चे कुछ समय के बाद इस साधन से डिटैच हो, राइट? जो आपने फोटो दिखाया, क्या हमारे स्टूडेंट्स, क्या हमारे बच्चे अपने मन और बुद्धि से उस चित्र को देख पा रहे हैं क्या? अगर वो बच्चे कर पा रहे हैं तो हमारे बच्चे भी अर्जुन जैसे महारथी, है ना, महायोगी बन सकते हैं। दे कैन बिकम वेरी स्ट्रांग एंड दे कैन बिकम वेरी वेरी पावरफुल। तो एकाग्रता अर्थात मन और बुद्धि, और जब हम एक ही चित्र को बार बार देखते हुए जब हम अपने कर्म में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज संस्कार। एंड दैट संस्कार इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड एज मेमोरी। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं यू शुड डेवलप अ गुड मेमोरी पावर। आज तक हमको लगता था मेमोरी इज रिमेंबरिंग फॉर्मूलाज, इक्वेशंस, डेरिवेशंस, बट माय फ्रेंड्स, what we need to understand is we need to memorize our own divine positive qualities। हमारे अंदर के जो दिव्य संस्कार हैं, शांति, प्रेम और शक्ति, उसको हम जितनी बार याद कर सकते हैं, इसका मतलब है हमारी स्मृति, हमारी स्मरण शक्ति बहुत बहुत स्ट्रांग है, और जैसी स्मृति होगी वैसे शक्तिशाली होंगे। So let us summarize the lecture for today. It is first mastering the mind through the power of concentration. मन का काम विचार करना, बुद्धि का काम उसका चित्र निर्माण करना। दूसरी बात है मास्टरिंग आवर इमोशंस। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप प्लीज रिएक्ट नहीं करें, लेकिन स्टेबल रहें, राइट? क्योंकि आप इधर उधर की बातें अगर हम रिएक्ट करते रहेंगे, मीन्स वी बिकम इमोशनली वीक। और इमोशंस को मास्टर करने के लिए मास्टरिंग द सेल्फ, मैं कौन हूं। सो आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, वेरी पीसफुल, वेरी लवफुल एंड वेरी पावरफुल। ये समझते हुए लेट अस प्रैक्टिस दिस ब्यूटिफुल टेक्निक ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। आई वेलकम यू टू undertake this beautiful internal journey of Rajyoga meditation. My dear friends, meditation has come from the Latin word mediri, which means to heal yourself.
ट्रीटमेंट हमारा शरीर का होता है, लेकिन हीलिंग जो ज़रूरत है वो हमारे मन और हमारी भावनाओं के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आज हम इतने सुंदर प्रकृति के जब नज़दीक बैठते हैं और इस प्रकृति के सानिध्य को जब हम महसूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम हीलिंग प्रोसेस में चलते हैं। और यहाँ पर प्रकृति हमसे कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रही है। प्रकृति इज़ इन एन एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ साइलेंस, लेकिन द एनर्जी फ्लो इज़ वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी प्योर एंड वेरी वेरी पॉजिटिव। हम सबको पता है टीचर्स नीड टू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन का मतलब दोस्तों सिर्फ अच्छी भाषा इंग्लिश हिंदी बोलना सिर्फ नहीं है, बट जब हम बोलते हैं तो शब्दों के पीछे हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा होता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट हमसे पूछता है, मैडम व्हाट इज़ माय करियर गोइंग टू बिकम, हाउ एम आई गोइंग टू पास द एग्जाम्स, तो अगर हम टीचर्स उनके साथ बोलते हैं कि नथिंग टू वरी, एवरीथिंग विल बिकम ओके, वो एक सेंटेंस है, लेकिन उस सेंटेंस के पीछे हमारा एनर्जी फ्लो क्या है ये तो सिर्फ हम जानते हैं। अगर हमें खुद ये डर या भय है कि द होल फ्यूचर इज़ वेरी ब्लीक, भले हम सेंटेंस पॉजिटिव बोल रहे हैं लेकिन हमारी जो भावना है इज़ नॉट गोइंग टू हील द स्टूडेंट। इसलिए मेडिटेशन इज़ अ मैकेनिज्म वेयर we don't communicate with outside in words, but we are in a state of silence and we try to understand our own positive divine vibrations and emotions. और जब हम ये महसूस करने लगते हैं तो हम इमोशनली सेंसिटिव से इमोशनली ओके होकर we become emotionally powerful, wherein in a state of silence we are able to empower the students who are in front of us. So meditation is a 3-step process. It is sit, set and get. Sit मतलब एक जगह आप आराम से बैठिए। Set मतलब अपने उस इनर फ्रीक्वेंसी को टच करिए ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस। और फिर जैसे ही आप उस फ्रीक्वेंसी को टच करेंगे, यू आर कनेक्टेड विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, द सुप्रीम ऑलमाइटी, हु इज़ एन ओशन ऑफ पीस, हु इज़ एन ओशन ऑफ लव, हु इज़ एन ओशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सर्टनली ऑफ स्ट्रेंथ। दैट वॉट इज़ एग्जैक्टली इज़ द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। मैं आप सबका इस मेडिटेशन की सुंदर यात्रा में बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। ओम शांति। चलिए हम एक सुंदर यात्रा पर निकले, एक आंतरिक यात्रा। Let's undertake an internal journey of meditation. Relax yourself completely. मैं अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करता हूँ। ये यात्रा हम मन और बुद्धि के द्वारा करेंगे। मन का काम विचार करना और बुद्धि का काम उसका चित्र निर्माण करना। जब मन और बुद्धि एक साथ काम करती है उसको एकाग्रता कहते हैं। मैं एक सुंदर प्रकृति के सानिध्य में बैठा हूँ। I am amidst beautiful nature. चारों तरफ की प्रकृति शांत, शीतल, vibrating, very positive flow of energy. जैसे बाहर की प्रकृति बहुत शांत और शीतल है, उसी तरह मेरा मन शांत होता जा रहा है। मेरे संकल्पों की गति एकदम कम होती जा रही है। मेरी बुद्धि दिव्य बनती जा रही है और मेरे संस्कार श्रेष्ठ और महान हैं।
मैं अपने आप को देख रही हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है। I am healthy. Every system of my body is working perfectly. मैं निरोगी काया हूँ और इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में मैं एक चमकता हुआ सितारा। At the center of the forehead, I'm a point of light. I'm a point of energy. मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ और मैं शक्ति स्वरूप हूँ। I am peaceful, loveful and very powerful. भले बाहर की परिस्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है, but I can still be peaceful and stable. I see myself playing different roles. I see myself playing the role of a parent and at the same time I'm playing the role of a teacher also. My communication is very, very effective. When I'm speaking to my students and to my family members, मेरे शब्द बहुत मधुरतापूर्ण लेकिन साथ साथ ये निश्चय और निश्चिंत कि one day everything will become okay. I connect my mind to the Supreme Teacher, the Almighty, the Sadguru, Param Jyoti Paramatma, and see the vibrations of peace, love and power coming to me and empowering me. I am a bundle of pure, positive, energetic thoughts. I am radiating these pure, positive vibrations. सफलता और खुशियाँ मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Thank you, Swami Bhai, for such a wonderful presentation. It was really observed. Your words of wisdom, your inputs definitely will benefit thousands of participants who are participating today. You have clearly said that meditation is an essential tool for mastering the mind. But let me, from perspective of participants, take to a beautiful place, Hanuman Batika in Rourkela. Here there is a big statue, huge statue of 75 feet of Hanuman, Lord Hanuman. And you will be astonished to know that it was inaugurated by then Chief Minister Biju Patnaik, and he had to garland by moving on helicopter. And if you move around the campus, there are so many temples, so many deities,
Lord Jagannath, Sai Baba, Shala Devi, Lakshmi Ma, all varieties of deities are here. So sometimes people are confused. If so many deities are there, people are worshipping, praying, then what is the need of meditation? Even we can move to a new place where you will find how people are worshipping river, nature, and that famous place is Ved Vyas. Let's move there. We have reached the beautiful place filled with natural beauty. We can see all around plants, trees, and most beautiful thing, two rivers merging together, Shankh and Koel, to become Brahmani. Sangam has very reputed significance. So far, contemplation, meditation, prayer concern. It is called Ved Vyas, famous saint, meditated here and written famous epic Mahabharata. Today, we will learn what is meditation, what is prayer from Sister Shwetaben. Sister Shweta is basically a reputed motivational speaker and Raj Yoga teacher for a decade serving in Rourkela. Sister Shweta will focus on difference between prayer and meditation and techniques of Raj Yoga. ओम शांति। सर्वप्रथम तहे दिल से आदरणीय भ्राता स्वामीनाथन भाई जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज की एक विशेष सुंदर थीम को लेकर के सबके समक्ष वो आए हैं और वो थीम है मास्टर द माइंड। हम सभी इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से सुने कि हम अपने मन के ऊपर मालिक बनकर के कैसे चले और उसके सहित वो अपने वक्तव्य में और एक चीज़ को हमारे समक्ष वो लेकर के आए कि मन को अगर हमें नियंत्रण करना है या मन को अगर हमें एक सही दिशा दिखाना है तो उसका एक ही साधन है और वो है मेडिटेशन। और उसके पश्चात मैं आदरणीय भ्राता अरुण भाई जी को भी तहे दिल से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्हें भी अपने वक्तव्य में भी ये रखा है कि प्रेयर और मेडिटेशन वास्तव में क्या चीज़ है। वास्तव में देखा जाए तो सदियों समय से सदियों कालों से अगर देखा जाए हम सभी उस ईश्वर के नाम से प्रार्थना करते आए हैं, लेकिन प्रार्थना को अगर देखा जाए कि इट्स ए वन वे ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि प्रार्थना में हमने क्या किया, सिर्फ हम इस ईश्वर से उस परमात्मा से मांगते आए कि हे ईश्वर मुझे सुख चाहिए, हे ईश्वर मुझे शांति चाहिए, हे ईश्वर मुझे धन चाहिए। लेकिन परमात्मा से भी हम सभी दूर होते गए और उसी के दौरान ही हम सभी उसके प्राप्ति से भी दूर होते गए। लेकिन
आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें बहुत सुंदर एक दिशा की ओर ले जा रहा है और वो है राजयोगा मेडिटेशन, जिस मेडिटेशन के आधार से हम सभी अपने मन को नियंत्रित करने के साथ साथ उस ईश्वरीय प्राप्तियों को भी अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जिन प्राप्तियों की तलाश में हम सभी, चाहे वो सुख हो, चाहे वो शांति हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो समृद्धि हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि मनुष्य आत्मा एक ऐसी प्राणी है जो सर्व कामनाओं, सर्व इच्छाओं को लेकर के वो चल रहा है। तत्पश्चात भी वो सर्व इच्छाओं से वो दूर है और उसके पीछे एक ही कारण है, वो परमात्मा से दूर है तथा अपने आप से दूर है। तो लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि अपने मन को नियंत्रण करने के लिए या मन को एक सही दिशा दिखाने के लिए कहे, सही दिशा की ओर ले जाने के लिए कहे, ईश्वर के द्वारा सिखाया हुआ राजयोगा मेडिटेशन को सर्वप्रथम सीखना भी ज़रूरी है तथा उसे अपने जीवन में धारण करना भी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हमने योग शब्द कहा, योग अर्थात जोड़ कहे या योग अर्थात एक कनेक्शन कहे। जैसे हम सभी जानते हैं कि एक लौकिक योग भी होता है, एक अलौकिक योग भी होता है तथा एक पारलौकिक योग भी है। लौकिक योग जो कि एक देहधारी इंसान के साथ एक इंसान का एक जो जोड़ है, माता पिता हो, भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो। अलौकिक योग भी ऐसी है कि हम अपनी प्राप्तियों के लिए जिन देवी देवताओं को पूजा करते आए हैं, जिनके साथ भी हमने अपने एक संबंध को जोड़ा है, वो है अलौकिक योग। तीसरा योग जो कि सर्वश्रेष्ठ योग कहा गया है, वो पारलौकिक योग है तथा उसको हम दूसरे शब्द में कह सकते राजयोग। राजयोग एक ऐसी योग है और जो सिखाने वाला ना कोई देहधारी, ना कोई मनुष्य आत्मा, ना कोई साधु, ना कोई सन्यासी, ना कोई गुरु, ना कोई महात्मा है। इस योग को सिखाने वाला वो परमपिता परमेश्वर है और ये योग आत्मा के साथ परमात्मा का कनेक्शन है। और अभी हमें सबसे बड़ी चीज़ जाननी ये ज़रूरी है कि वास्तव में ये आत्मा क्या चीज़ है, वास्तव में वो परमात्मा क्या चीज़ है। आत्मा कहते ही हम जानते हैं कि एक नेगेटिव सोर्स जो है उसको हम जो देखते आए हैं, हम वही सोचते आए, लेकिन आत्मा वास्तव में एक चैतन्य शक्ति है और वो चैतन्य शक्ति मैं खुद हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ और हम सभी आत्माओं का पिता वो परम पिता परमात्मा है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वास्तव में देखा जाए तो शरीर सबका अलग अलग है, लेकिन आत्मा सभी एक है और हम सभी आत्माओं का पिता वो परम पिता परमेश्वर है, जो कि हमें बहुत सुंदर एक सर्वश्रेष्ठ योग सिखा रहा है, जिसको कहा गया है राजयोग। ओम शांति। कुछ समय के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से डिटैच कर लीजिए। एक सुंदर अनुभूति करने के लिए तैयार हो जाएं। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मेरा पिता वो परम पिता परमात्मा है। शक्तियों का सागर है। तथा शांति का सागर है।
विजुअलाइज करने की कोशिश करें। मैं जैसे अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का पिता भी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। धीरे धीरे अपने आप को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। मैं इस शरीर से डिटैच एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। आत्मा अलग और शरीर अलग है। इस 5 तत्वों की दुनिया से आकाश, जल, वायु, पृथ्वी तथा अग्नि से मैं अपने आप को संपूर्ण रीति से डिटैच करती जा रही हूँ और एक सुंदर सी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही हूँ। अपने आप को देखें। इस 5 तत्वों की दुनिया को छोड़कर मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही हूँ। जहाँ चाहो और लाल रंग की प्रकाश फैली हुई है। मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा अपने घर में, अपने वतन में अपने स्वधर्म में स्थित हूँ। चारों तरफ सफेद कलर की प्रकाश फैली हुई है। एक अलौकिक, एक अद्भुत वाइब्रेशंस के अंदर मैं अपने आप को देख रही हूँ। असीम शांति की लहरें चारों तरफ है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को देख रही हूँ। वो परमात्मा सर्व गुणों का वो धनी है। वो शांति के प्रकाश मेरे तरफ निरंतर प्रवाहित हो रहा है। और मैं अंदर से वो असीम शांति को अनुभव कर रही हूँ। मैं अपने
सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को, सर्व प्रकार के दर्द को उस पिता के समक्ष रख रही हूँ। मेरी सर्व प्रकार की चिंता, समस्या, दुख, दर्द हटते जा रहे हैं और मुझे एक आंतरिक खुशी की अनुभूति हो रही है। इस अनुभूति के दौर पर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं नीचे की ओर आ रही हूँ। इस 5 तत्वों की दुनिया के अंदर प्रवेश हो रही हूँ। चारों तरफ शांति ही शांति है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Thank you, Shwetaben. Really, journey to silence was observing. We have understood the power of meditation. Certainly, meditation, Raj Yoga meditation, has been transforming lives of thousands of people, millions of people all over the world. Criminals, hardcore criminals, they have also transformed. So this is power of meditation that gives us the technique to master our own mind. Dear participants, I am thankful to all of you for giving such a valuable time for this seminar. It was a great pleasure in interacting in conducting this seminar. With these few words, I am thanking you again, and let us conclude this program by a beautiful song by Ayushman, who is a class 8 student of Rourkela, and he, along with his all family members, love to learn Raj Yoga meditation. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला।
कितने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसकी रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो बार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम ना जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है।